Om Jnanam Timirandasya Jnanajana Salakya Chakshuranam Ultimana Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamena Bhutale Savrupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Yutapatak Kamlam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagarjatam Sahagandhagunatavitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lita Shri Vishaka Vidam Cha Namo Vishnu Padaya Krishna Pisthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasata Desha Tarine हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपय राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। We have to start. Yes. His case is Srila Prabhupada. Hare Krishna. In India, there are disciplic successions coming from Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbag, Vishnu Swami, and other great sages. The Vedic literatures are understood through these superior spiritual masters. Arjuna understood Bhagavad Gita from Krishna, and if we wish to understand it, we have to understand it from Arjuna, not from any other source. If we have any knowledge of Bhagavad Gita, we have to see how it tallies with the understanding of Arjuna. If we understand Bhagavad Gita in the same way that Arjuna did, we should know that our understanding is correct. This should be the criteria for our studying of Bhagavad Gita. If we actually want to receive benefit from Bhagavad Gita, we have to follow this principle. Bhagavad Gita is not an ordinary book of knowledge, which we can purchase from marketplace, read, and merely consult a dictionary to understand. This is not possible. If it were, Krishna would never have told Arjuna that the science was lost. We should do. It is not difficult to understand the necessity of going through the disciple succession to understand Bhagavad Gita. If we wish to be a lawyer, an engineer, or doctor, we have to receive knowledge from the authoritative lawyers, engineers, and doctors. A new lawyer has to become an apprentice of an experienced lawyer, or a young man starting to be a doctor has to become an intern and work with those who are already licensed practitioners. Our knowledge of a subject cannot be perfect, perfectionalized unless we receive it through an authoritative source. Right. There are two processes of attaining knowledge. One is inductive and other is deductive. The deductive method is considered to be more perfect. We may take a premise such as all men are mortal and no one need discuss how man is mortal. It is generally accepted that this is the case. The deduction conclusion is Mr. Johnson is a man, therefore Mr. Johnson is mortal. But how is the premise that all men are mortal arrived at? Followers of inductive method wish to arrive at this premise through experiment and observations. We may just study that this man died and that man died, etc. And after seeing that so many men have died, we may conclude or generalize that all men are mortal, but there is major defect in the inductive method, and that is our experience is limited. We may never seen a man who is not mortal, but we are judging this on our personal experience, which is finite. Our senses have limited power, and there are so many defects in our conditional state.
The inductive process, consequently, is not always perfect, whereas the deductive process from a source of perfect knowledge is perfect. The Vedic process is such a process. Yes, Shuntuji. your turn. Yes, Shuntuji. Although the authority is acknowledged, there are many passages in Bhagavad Gita which appear to be dogmatic. For instance, in the 7th chapter, Krishna says, Mata parantapam nanya kinchid asti dhananjaya mai shavam idam proktam sutramani guna eva. O conqueror of wealth, Arjuna, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Sri Krishna is saying that there is no authority greater than him, and this appears to be very dogmatic. If I say there is no one greater than me, people would think, oh, Swamiji is very proud. If a man who is conditioned by so many imperfections says that he is greater of all, he blasphemes. But Krishna can say this, for we can understand from the histories that even while he was on this earth, he was considered the greatest personality of his time. Indeed, he was the greatest in all fields of activity. According to the Vedic system, knowledge which is achieved from the greatest authority is to be considered perfect. According to the Vedas, there are three kinds of proof: Pratyaksha, Anumana, and Shabda. One, one is direct visual perception. If person is sitting in front of me, I can see him sitting there, and my knowledge of his sitting there is received through my eyes. The second method, Anumana, is auricular. Uh, we may hear children playing outside, and by hearing we can conjecture that they are there. And the third method is the higher authorities, such as tradition. We have to accept this. If someone asks, who found this truth? Who found this truth first? Did you discover it? It is very difficult to say. All we can say is that the knowledge is coming down and that we accept it. Out of the three methods of acquiring knowledge, the Vedas says the third method, that of receiving knowledge from the higher authorities, is the most perfect. Direct perception is always imperfect, especially in the conditional stage of life. By direct perception, we can see that sun is just like a disk, no larger than the plate we eat on. From scientists, however, we come to understand that the sun is many thousands of times larger than the earth. So, what are we to accept? We are to accept that scientific proclamation, the proclamation of authorities, or our own experience. Although we cannot ourselves prove that how large the sun is, we accept the verdict of astronomers. In this way, we are accepting the statement of authorities in every field of our activities. From newspaper and radios, we also understand that such and such events are taking place in China and in India and other places all around the world. We are not experiencing these events directly, and we do not know that such events are actually taking place. But we accept this authority on the newspaper and radio. We have no choice but to believe in authorities in order to get knowledge. And when the authority is perfect, our knowledge is perfect. Hare Krishna. According to Vedic sources of all authorities, Krishna is the greatest and most perfect. Mataha parataram nanyat kinchid asti dhananjaya. Not only does Krishna proclaim himself to the highest authority, but this is also accepted by great sages and scholars in Bhagavad Gita. If we do not accept Krishna's authority and take his word as they are, we cannot derive any benefit from Bhagavad Gita. It is not dogmatic, it is a fact. If we study scrutinizingly and Krishna says, we will find that that is right. Even scholars like Shankaracharya, who have different opinions on the personality of Godhead, admitted Krishna is the Swam Bhagavan. Krishna the Supreme Lord. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Prabhuji. Vedic knowledge is not a recent discovery. It is it is all old revealed knowledge. Krishna refers to as Parantana,
which means ancient. Krishna says that millions of years before he spoke this yoga to the sun god, and we do not know how many millions of years before that he spoke it to someone else. This knowledge is always being repeated, such as summer, autumn, winter, and spring are repeated every year. Our fund of knowledge is very poor. We do not even know the history of this planet more than 5,000 years back, but the Vedic literatures give us histories extending millions of years ago. Just because we have no knowledge of what happened 3,000 years ago on this planet, we cannot conclude that there was no history then. Of course, one can disclaim the historical validity of Krishna. One may say that Krishna, according to Mahabharata, lived 5,000 years ago. And this being the case, there is no possibility of his having spoken Bhagavad-Gita to the sun god so many millions of years before. If I say that I gave a speech on the sun some million years ago to the sun god, people would say Swamiji is speaking some nonsense. And this is not the case with Krishna, for he is the supreme personality of Godhead. Whether we believe that Krishna spoke Bhagavad Gita to sun god or not, this fact is being accepted by Arjuna. Arjuna accepted Krishna as the supreme lord, and therefore he knew that it was quite possible for Krishna to have spoken to someone millions of years before. Although Arjuna personally accepts the statements of Shri Krishna in order to clarify the situation for people who would come after him, he asks, Apararam bhavato janma param janma vivashvata katham idam vijantyam tvam adau proktavaniti. This the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How can I to understand that in the beginning you instructed the sons to him? Actually, this is very intelligent question, and Krishna answers it in this way. Bahuni me vyatani jan janmani tavarjuna tani aham veda sarvani na tvam veda parantapa. Many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. O subduer of enemy. Although Krishna is God, he incarnates many times. Arjuna being a living entity also takes his birth many times. The difference between the supreme personality of Godhead and a living entity is Tani Aham Veda Sarvani. Krishna remembers the events of his past incarnation, whereas the living entities cannot remember. That is one of the difference between God and man. God is eternal and we are also eternal. But the difference is that we are always changing our bodies. At death, we forget the events of our lifetime. That means forgetfulness. That's all. At night, when we go to sleep, we forget that we are the husband of such and such wife and the father of such and such children. We forget ourselves in sleep. But when we wake up, we remember, oh, I'm so and so, and I must do such and such. It is a fact that in our previous lives we had other bodies and other families, father, mother, and so on in other countries. But we have forgotten all of these. We might have been dogs or cats or men or gods. Whatever we have now forgotten. Despite all these changes as living entities, we are eternal. Just as in previous life we have prepared for this body, in this lifetime we are preparing for another body. We get our bodies according to our karma or activities. Those who are in the mode of goodness are promoted to higher planets and in a higher status of life. Bhagavad-Gita 14.14. Those who die in the mode of passion remains on earth, and those who die in the mode of ignorance may fall into any more species of life or may be transferred to lower planet. Bhagavad-Gita 14.15. This is the process that has been going on, but we forget it. At one time, Indra, the sun, the king of heaven, committed an offense at the feet of his spiritual master, and his spiritual master cursed him to take the birth of a hog. Thus, the throne of the heavenly kingdom became empty as Indra went to earth to become a hog. Seeing the situation, Brahma came to earth and addressed the hog.
My dear sir, you have become a hog on this planet Earth. I have come to deliver you. Come with me at once. But the hog replied, "Oh, I cannot go with you. I have so many responsibilities. My children, wife, and this nice dog society. Even though Brahma, even though Brahma promised to take him back to heaven, Indra in the form of a hog refused. This is called forgetfulness. Similarly, Lord Shri Krishna comes and says to us, what are you doing in this material world? Savdharman Paritajya, Mamekam Sharanam Vraja, Bhagavad-Gita 10.6.6. Come to me and I will give you all protection. But we say, I do not believe you, sir. I have more important business here. This is the position of the contingent soul, forgetfulness. This forgetfulness is quickly dissipated by following in the path of disciplic succession. Okay. So the next chapter is knowledge of Krishna's appearances and activities. Yes, issue two. There are two forces of nature working in us. By one, we decide that in this lifetime we will make spiritual advancement, but at the next moment, the other force is Maya or religion energy says, what is all this trouble that you are going to? Just enjoy life and be easy with yourself. This tendency to fall into a forgetfulness is the difference between God and man. Arjun is a companion and associate of Krishna. And whenever Krishna appears on any planet, Arjun also takes birth and appears with him. When Krishna spoke Bhagavad Gita to the sun god, Arjuna was also present with him. But being a finite living entity, Arjuna could not remember. Forgetfulness is the nature of the living entity. We cannot even remember what we were, and doing at exact time yesterday or a week ago. If we cannot remember this, how it is possible to remember what happened in our previous lives? At this point, we may ask how it is that Krishna can remember and we cannot. The answer is that Krishna does not change his body. Okay. Swati Mataji. Hare Krishna. अजो अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्मा Mayaya. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all sentient beings, I still appear in every millennium in my original transcendental form. आगे भी पढ़ूं क्या प्रभु जी? जी माताजी कंप्लीट The कर word दीजिए ना पूरा यहाँ तक. ठीक है. The word Atma Mayaya means that Krishna descends as he is. He does not change his body, but we as conditioned souls change ours. And because of this, we forget. Krishna knows not only the past, present, and future of his activities, but the past, present, and future of everyone's activities. Vedaham sammitatani vartamani Arjuna भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन. स्क्रॉल करेंगे प्रभु जी. O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that you are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows. In Srimad Bhagavad Gita 7.26. In Srimad Bhagavatam, we also find that the Supreme Lord is defined as one who knows everything. This is not the case that with even the most elevated living entities such as Brahma and Shiva. Only Vishnu or Krishna knows everything. We may also ask that if the Lord does not change his body, why does he come as an incarnation? There is much difference among philosophers concerning this question. Some say that Krishna assumes a material body when he comes, but this is not the case. If he assumed a material body like ours, he could not remember, for forgetfulness is due to the material body. The actual conclusion is that he does not change his body. God is called all powerful, and in the verse quoted above,
His omnipotence is explained. Krishna has no birth and he is eternal. Similarly, the living entity has no birth and he is also eternal. It is only the body with which the living entity identifies that takes birth. In the very beginning of Bhagavad-Gita, in the second chapter, Krishna explains that we accept as birth and death is due to the body. And as soon as we regain our spiritual body and get out of the contamination of birth and death, then we should be qualitatively as good as Krishna. That is the whole process of Krishna consciousness. The revival of our original Satchidananda spiritual body. The body is eternal, Sat, full of knowledge, Chit, and blissful Ananda. This material body is neither Sat, Chit, nor Ananda. It is perishable, whereas the person who is occupying the body is imperishable. It is also full of ignorance. And because it is ignorant and temporary, it is full of misery. We feel severe hot or severe cold due to the material body, but as soon as we revive our spiritual body, we become unaffected by dualities. Even while within the material bodies, there are yogis who are impervious to dualities such as heat and cold. As we begin to make spiritual advancement while in the material body, we begin to take on the qualities of spiritual body. If we put iron into a fire, it becomes hot and then it becomes red hot, and finally it is no longer iron but fire. Whatever it touches bursts into flames. As we become advanced in Krishna consciousness, our material body will become spiritualized and will no longer be affected by material contamination. Yes, Prabhuji. Krishna's birth, his appearance, and disappearance are likened unto the appearance and disappearance of the sun. In the morning, it appears as if the sun is born from the eastern horizon, but actually it is not. The sun is neither rising nor setting. It is as it is in its position. All rising and settings are due to the rotation of Earth. Similarly, in Vedic literatures, there are prescribed schedules for the appearance and disappearance of Sri Krishna. Krishna's rising is like this. The sun's rising and setting are going on at every moment. Somewhere in the world, people are witnessing sunrise and sunset. It is not that at one moment Krishna is born and at another moment he is gone. He is always there. He appears to come and go. Krishna appears and disappears in many universes. We only have experience of this one universe, but from Vedic literatures, we can understand that this universe is but a part of infinite manifestations of the Supreme Lord. Yes. Although Krishna is the Supreme Lord and is unborn and unchangeable, he appears in his original transcendental nature. The word Prakriti means nature. In the seventh chapter of Bhagavad Gita, it is stated that there are many kinds of nature. These have categorized into three basic types. There is external nature, internal nature, and marginal nature. The external nature is the manifestation of the material world. And in the seventh chapter of Bhagavad Gita, this is described as apara, or material nature. When Krishna appears, he accepts the higher nature, the Prakritam Swayam, not the inferior material energy. Sometimes the head of a state may go to the prison house in order to inspect the prison and see the inmates there. But the prisoners are error if they think the head of state has come to prison, so he's a prisoner just like him. As pointed out, Sri Krishna states that fool deride him when he decide. Krishna states that fool deride him when he descends in the human form. Hare Krishna. Krishna as the Supreme Lord can come here at any time, and we cannot object and say that he cannot come. He is fully independent and he can come and disappear as he likes. If the head of a state goes to visit a prison, we are not to assume that he is forced to do so. Krishna comes with a purpose, and that is to reclaim fallen conditioned souls. We do not love Krishna, but Krishna loves us. He claims everyone as his son. आगे पढ़ूं क्या? We can stop here. Mataji. Okay. 26 minutes. Are over already. Okay, so we can stop here and start with the learnings and realizations. So, we can start with physical session. Prabhuji.
Yeah. So I like the point where Prabhupada is saying that if Krishna says that I am the cause of all causes and there is no truth superior to me, then one might think that, oh, he is boasting about himself. Like so, Prabhupada says, if I will also say that I am the supreme truth, then you will also think that Swamiji is boasting about himself so much. Mhm. But it's not boasting actually. If when we join a new company, and let's say on a video call or personal meet, someone says that I am the CEO of the company, then one would like to understand if he's really the CEO of the company. We might think, oh, he's boasting, and someone might boast also. But then, from inquisitive perspective, you'll have to resolve your inquiry through a bona fide disciplic succession, or someone who is dear to someone who is in the family of the company. Only he can tell that if he is a CEO or not. Other people who are not in the family of that company, they won't be able to resolve the query because for the outside world, he is a simple ordinary person. So similarly, Krishna is an ordinary person for an outside world, but only the person who is in the family of Krishna, which means who is devotee of Krishna and dear friend of Krishna, is in the disciplic succession of Krishna, coming from Krishna. He only can tell us that Krishna is not bluffing, and that is the real position of Krishna. So that is my learning from that verse which Prabhupada is mentioning, that whatever Krishna is telling in Bhagavad-Gita, that is to be understood in disciplic succession, because only the disciplic succession can help us understand what Hare Krishna Prabhuji, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है प्रभु जी, मेरी साइड से इशू प्रभु। अच्छा सॉरी, नहीं मेरी साइड से होगा। ओके ओके ओके। तो आवाज आया उदित को? यस प्रभु जी, अभी अभी ठीक कहाँ हो तक रहा है सुना था आपने? प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, यस। ओके ओके। okay. So that's all from my side. Thank you, Udit bro. थैंक यू प्रभु जी। इशू प्रभु, यू वांट टू शेयर समथिंग? प्रभु जी, अश्विन प्रभु से 2-3 क्वेश्चन थे मेरे। पहला क्वेश्चन तो ये था, आज की रीडिंग से ही क्वेश्चंस हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री विल का, जिसमें बात करते हैं, प्रभुपाद भी बताते हैं गीता के अंदर, और भगवान स्वयं बताते हैं कि एक इंसान के फ्री विल से भगवान छेड़ते नहीं है। तो एक क्वेश्चन उठ के आता है कि इसमें एक और जगह पढ़ा था हमने कि भगवान हमारा पास्ट, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मैन, जो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को सारे चीजों के बारे में पता है। ही नोज द पास्ट, ही नोज द प्रेजेंट, एंड ही नोज व्हाट येट टू कम। तो एक ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट इससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है? मतलब जब, हाँ, और एक और चीज निकल के आती है साथ में कि सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, मतलब तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारे हिस्से में वही आता है, दैट इज ग्रांटेड टू यू। तो ये चीज को कैसे हार्मोनाइज करेंगे? मतलब एक जगह पे ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट है साथ में, और एक जगह पे ये भी है कि यू आर डेस्टाइन्ड टू एवरीथिंग, कि पहले से ही पता है सब कुछ ये। तो ये हार्मनी कैसे आती है इन दोनों सेंटेंस के बीच में? एक ये सवाल था, और एक दूसरा ये था कि वो जो पिछली बार का रह गया था उदित प्रभु, शायद आपको याद हो, जो मैंने आपसे पूछा था कि अर्जुन वाली जो डिसाइप्लिक चेन है वो क्यों नहीं आगे बढ़ी? कि जब कृष्णा ने सबसे पहले अर्जुन को ही वो दिया था, नॉलेज दी थी, तो ये अर्जुन वाली डिसाइप्लिक चेन कैसे टूट गई? मतलब अर्जुन ने भी कोशिश करी थी या की भी नहीं थी, या सिर्फ अर्जुन ने सुना था? दैट इज माय कंसर्न कि अर्जुन वाली। यस प्रभु जी, आई रिमेम्बर आपने या क्वेश्चन करा था कि
जब भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया तो वो डिसाइपल सक्सेशन में आगे वहां से अर्जुन से हाँ नीचे क्यों नहीं बढ़ा? हाँ, ये क्यूरियोसिटी थी, मतलब क्वेश्चन नहीं था, बेसिकली क्यूरियोसिटी थी जानने की। बहुत अच्छा था बहुत बढ़िया। वो अर्जुन से आने भी नहीं थी एक्चुअली। भगवान जो थे ना उस समय 3-4 लोगों को सुनाए थे, तो उसमें एक तो वेद जी थे, अर्जुन थे और संजय थे। और फिर संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र थे। जी तो जी। डिसाइपल सक्सेशन एक्चुअली वेद व्यास जी के माध्यम से आनी थी। ओ मतलब ये मतलब वो था, मतलब ये सेटल था, हाँ मतलब ये इशू ये मतलब मेरे जो ये मतलब लगता था एक्चुअली कभी कभी। एक तो होते हैं आचार्य और हम्म एक हम्म होते हैं डिवोटीज। हम्म जैसे हम लोग भी हैं तो प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद के फिर डिसाइपल सेक्शन में उनके डिसाइपल्स हैं। तो हम्म एक तो जनरल डिवोटीज भी होते हैं, तो भगवान उनको हम्म भी सुना सकते हैं। पर हम्म अगर डिसाइपल सक्सेशन की बात करते हैं तो वो आचार्य ही फॉलो करेंगे। हम्म। तो इसलिए नहीं, वेद व्यास जी के माध्यम से हमारे डिसाइपल की सक्सेशन है। ट्रू ट्रू ट्रू, आई बिलीव दैट, बट वो जो एक वो क्वेश्चन उठ के आता है ना, लोग बोलते हैं कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द नॉलेज, मतलब वेद व्यास जी ने जब लिखा तब पहले सुनाया गया था अर्जुन को। तो वो उनकी क्यूरियोसिटी ये रहती है कि व्हाई शुड अर्जुन ने, मतलब अर्जुन ने आगे क्यों नहीं बताया था। तो दूसरा रीजन मेरे दिमाग में ये आता है कि मे बी मतलब टाइम की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, हु नोस, देयर सम अदर संप्रदाय जो चल नहीं रही नहीं, हो। अर्जुन ने किसी को लेकिन नहीं वो सुनाया, तो ये हाँ, श्योर है। देखो भाई क्या भाई, होगा ना कि अगर अर्जुन किसी को सुनाएंगे तो हमारे स्क्रिप्चर्स में तो होगा ना मेंशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कहीं भी अर्जुन ने नहीं मेंशन सुनाया, श्योर है। पर हाँ है। वेद व्यास जी ने सुनाया है। हम्म। वेद व्यास जी और ने प्रभु सुनाया जी था। वाले दो क्वेश्चन जो एक बार आप बताएंगे, इसका हार्मनी कैसे लेके आएंगे इनके बीच में? हाँ एक्चुअली उसमें जो मैं सीनियर भक्तों से भी इसके बारे में सुना हूँ, तो उसमें बताते हैं कि एक पहले हम समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट को जानना। जैसे आज के टाइम में हम लोगों ने सुना होगा कि जो फेसबुक है वो हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, और उसे हम कल क्या करने जा रहे हैं उसे पता है कि आज की हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से उसको ये पता होगा कि हाँ ये 2 महीने बाद ये व्यक्ति सुसाइड कर लेगा। तो उसे कैसे पता चला? बिकॉज ही नोज अवर साइकोलॉजी, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा है। तो ये सब कैसे आता है? ये जैसे भगवान भी है ना, उनको इटर्निटी का एक्सपीरियंस है। उनको पता है कि ये व्यक्ति या ये संसार अब कैसे बिहेव करने जा रहा है। जैसे अर्थ पे अगर इतना सब कर्म हो रहा है, तो अब अर्थ पे कहीं आग लगने वाली है, कहीं भूखमरी आने वाली है, कहीं ये होने वाला है। तो उस सेंस में उन्हें प्रेजेंट भी पता है क्या चल रहा है, बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट। एंड वॉट एवर इज गोइंग ऑन, उसके हिसाब से फ्यूचर क्या होने जाना है उन्हें ये भी पता है। और पास्ट तो ऑब्वियसली उन्हें पता ही है, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ इटर्निटी। तो उस सेंस में उन्हें पता है। बट फ्री विल जो है वो व्यक्ति की हमेशा इंटैक्ट है। तो मान लीजिए कि एक बंदा है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो उसके उसके मन में धीरे धीरे चोरी के बारे में अब आने लगा, वो चोरी की वीडियोस देखने लगा, चोरी कैसे करते हैं, ये करते हैं। तो अब भगवान को फ्यूचर कैसे पता है कि उनको अब ये कुछ दिन में चोरी करने लगेगा। बट अभी भी उसकी फ्री विल हमेशा इंटैक्ट है, इस सेंस में कि वो वीडियोस देखना बंद करे, साधु संतों का संग करे, भगवान का भक्त बने, उनकी सेवा करे। उस सेंस में वो कभी इंटरफेयर नहीं करते भगवान। पर किस सेंस में उन्हें फ्यूचर पता है? द वे करंट थिंग्स आर गोइंग ऑन, कृष्णा सेज आई नो व्हाट्स गोना हैपन, आई नो द फ्यूचर। तो उस सेंस में भगवान बोले हैं। ये मैं केशवानंद प्रभु के लेक्चर में सुना था एक बार। प्रभु जी, और ये वाला जो क्वेश्चन रहता है कि साथ में मतलब जैसे ये चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो बताते हैं ना कि आपको इतना ही मिलना होगा, जैसे आप भागवतम में भी पढ़ते हैं जिसमें बताते हैं कि, और तुलसीदास जी को भी पढ़ते हैं तो वो बताते हैं हाँ राइट कि राइट राइट। तो आपको उसमें जितना मिलना है। जी जी उसमें बोलिए। से तो 5 चीजें आती हैं कि हमको उनका फिक्स हो जाता है। सुख दुख, और फेम, मनी, एंड देयर इज वन मोर आई थिंक, वुमेनली प्लेजर। ऐसे 4 या 5 चीज हैं जो फिक्स हैं, जो एक बार जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका उसके अकाउंट में आ जाता है कि इसको इतना सुख मिलेगा ही मिलेगा। वो सुख के मिलने का तरीका चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको अचानक से कुछ बहुत ज्यादा धन मिल जाए। ऐसा हम संसार में देखे भी है कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है धन के लिए। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, अंगूठा छाप है पर खूब धन कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे नॉन में भी कुछ लड़के हैं जो बहुत अच्छा थे पढ़ने में, बट वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है उनका। ये कर्मा है, मतलब उनका पुराना, जिनका भी चल रहा है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना कि आपका तो राजयोग चल रहा है, 4-5 साल तक रहेगा। कुछ कुछ चीजें फिक्स हैं आपके कर्म के हिसाब से, वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी।
अब उसमें फिर आता है कि पुरुषार्थ किस बात का फिर काम करें कि नहीं करें, बैठे रहे मिल जाएंगी। उसके लिए बोलते हैं कि हाँ आपको मिल तो जाएंगी, देखो वो तो फिक्स है, बट थोड़ा सा उसमें ना कर्म भी एडिड होना चाहिए, ये भी एक है। मतलब मिल जाएंगी पर वो भी, उसमें भी कुछ ऐसा एडेड है कि अगर उतना कर्म करोगे तभी वो मिलेंगी। तो मिल जाएंगी के साथ कर्म ऐड होगा, तो मान लो किसी ने इस जन्म में सोचा नहीं मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, तो वो भी शायद प्लैनेट्स उसे फेवर ना करें उसे कर्म के हिसाब से, और आने वाले टाइम पे करें। बट द पॉइंट इज कि अब करें कि तब करें, मिल तो उसे जाएगा। ज्यादा पुरुषार्थ करने का शायद उसे जरूरत ना पड़े, जो भी थोड़ा बहुत करेगा उससे मिल जाएगा, बट रहेगा वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही। तो एक जो चीज जो कर्म से ऊपर है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर की है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है, वो है भक्ति। कई बार लोग कहते हैं कि आप ये कर दो वो कर दो जैसे आपको भक्ति मिले, बट भक्ति एक्चुअली कृपा से ही मिलती है। भक्ति तो बिना कृपा के मिल नहीं सकती है, करेक्ट ना? तो ये कर्म से ऊपर इसलिए आ गई है क्योंकि ये कर्म में बंधी हुई नहीं है कि कर्म कर दोगे तो भक्ति मिल जाएगी। इनफैक्ट जैसे कई बार मैं भक्तों से इस कथा को शेयर करता हूँ कि जैसे नरसिंह पुराण में कथा आती है ना, कि एक व्यक्ति था, तो उसने क्या किया कि एक फूल था, एक भक्त को दे दिया, जो भगवान वैष्णव थे, वो डिवोटी, तो उसने उनको दे दिया था अपने बगीचे से निकाल के। व्यक्ति बहुत पापी था, तो जब यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा कि, मतलब चित्रगुप्त बोले यमराज से कि भाई बहुत ही पापी व्यक्ति है, इसकी तो बहुत कुटाई बनती है नरक में, पर इसने एक पुण्य किया है जिसकी वजह से स्वर्ग में 15 मिनट बिता सकता है। तो अब तो उससे पूछा गया कि तुम क्या चूज करोगे, तो उसने बोला कि पहले क्या चूज करोगे, नरक मिलियंस ऑफ ईयर्स और उसके बाद 15 मिनट स्वर्ग, या पहले 15 मिनट स्वर्ग और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स नरक। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगा पहले 15 मिनट। तो उसे स्वर्ग भेज दिया गया। फिर वहां से उसे रियलाइजेशन हुआ और वो फिर वहां से बैकुंठ चला गया भगवान के धाम में। मुझे पॉइंट इज कि ऐसा लगता है कि ये एक कर्म है जो उसने किया, उसने फूल देने का कर्म किया, पर ये वही तो देख, मेटेरियल पर्सपेक्टिव से कर्म लगता है ये, बट ये कर्म नहीं है। ये उस डिवोटी की कृपा है, जो उस भक्त की कृपा है जिन्होंने उसको कहा कि नहीं तुम मुझे फूल दो, क्योंकि उसने देखा उसकी ऐसी डिग्रेडेड सिचुएशन है, इसे मैं भक्ति नहीं दूंगा तो यहीं फंसा रह जाएगा इसके इस संसार में। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि भाई कि जो कर्म बंधन है उसके हिसाब से कुछ कुछ आपको बेनिफिट मिलना ही है, वो बेनिफिट आपको मिलेगा चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, बट भक्ति तो भक्तों के माध्यम से मिलेगी, तो दैट इज अवर अटमोस्ट नेसेसिटी। हाँ मुझे वही डाउट रहता है ना, वो सिली माइंड जो रहता है दिमाग के अंदर आता है ना, कि जैसे भक्ति कर रहे हैं कि हाउ दिस ऑल ऑफ द थिंग सडनली हैपेंड, कि इट डेस्टाइन्ड था, ये क्या मतलब। तो एक ही मतलब आंसर उसका, इट्स मर्सी ऑफ मतलब प्रभुपाद और फिर भगवान की, ये डिवोटीज एसोसिएशन की, कि मिल गया है। और फिर एक और क्वेश्चन हाँ, आता है कि ये कब तक रहेगा साथ में, मतलब सर कि हम कितने लोग साल। एक्चुअली वो बोलते हैं कि जब तक डिवोटीज का एसोसिएशन हम लोग देते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, तब तक वो कृपा फ्लो होती रहेगी। नहीं प्रभु जी, कल मैं ना केशवानंद प्रभु जी को सुन रहा था, तो वहां से निकल के आया थॉट मेरा, तो उन्होंने एक टॉपिक रखा था कि शादी करना जरूरी है कि नहीं। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक तो उन्होंने लिखा था, तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से दैट पीपल आर नॉट पुशिंग, मतलब लोगों को है ना उसके लिए पुश नहीं कर रहे हैं ब्रह्मचारी जाने के लिए, दे आर सेइंग कि आप सेटल हो जाओ, ये हो जाओ। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप इस्कॉन में देखेंगे कल्चर के ऊपर, दे आर पुशिंग कि आप सेटल हो जाओ लाइफ में, देन यू कैन डू भक्ति भक्ति, जो भी आप रहते हैं साइड बाय साइड चलिए, एक दूसरे को हेल्प करिए, ये वो। देन आई वाज थिंकिंग कि मतलब फिर उसके बाद वो इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं, उनका ऐसा मानना है कि वंस यू गेट मैरिज, सो नो डाउट आपका डाउन मतलब सडनली फॉल डाउन हुआ है, मतलब भक्ति से, कि आप ब्रह्मचारी रहने के बाद 14-15 साल या 10-12 साल आपने करने के बाद आपका डाउन अगर ऐसा डाउनफॉल, बट वो देखा नहीं जा रहा है। तो एज अ डाउनफॉल नहीं देखा जा रहा है, वो मिल रहा है, मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा है इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इटसेल्फ। तो फिर वो वाली बात आ जाती है ना कि अगर आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो फिर एसोसिएशन भी डेंजरस हो जाती है, कि कैसे इस चीज को टेक करिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा था कि फिर इन चीजों को हार्मोनाइज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, कि फिर कब तक रहेगी भक्ति, कब तक नहीं रहेगी, क्योंकि हम ही खुद भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं उन चीजों को लेके। नो डाउट बहुत सारी चीजें इसमें काम कर रही हैं साथ में, बट एक, हाँ, एक बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है ना कि एसोसिएशन चूज करनी है, लेकिन फिर वो वाली बात आ जाती है कि उसमें थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, कि व्हाट टू whom टू एसोसिएट विद। या मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही गलत हो सकती है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, बट आई एम आस्किंग यू कि इस चीज को कैसे देखना चाहिए फिर एसोसिएशन वाइज, कि
हमेशा रहेंगे, या जिसमें रह रहे हो कि वो हेल्पफुल है कि नहीं है देखने की, क्योंकि हम हमेशा वही सुनना चाहते हैं ना जो हमें सुनना होता है, दैट द ह्यूमन टेंडेंसी इज। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है कभी कभी कि एसोसिएशन तो ठीक है। कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम व्यक्ति भक्ति में आता है ना, तो भक्ति में नहीं है तो माया की गोद में खेल ही रहा है व्यक्ति। एग्जैक्टली। फिर तो माया की गोद में खेल रहा है, ठीक है, तो माया को कोई टेंशन नहीं है, बोले हाँ ठीक है नचाते रहो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही व्यक्ति चैंटिंग करना शुरू कर किया, बिल्कुल नया नया भक्ति में आया, उसे किसी ने बोला, उसने एकदम अलग करना शुरू कर दिया, तो माया के लोग कह रहे मेरी तो गोद से जा रहा है ये। तो गोद से जाने वाले व्यक्ति को माया क्या काम करती है, पहले बहुत माया के लुभावने अवसर देती है उसको, अपना थोड़ा बहुत पैसा वैसा आने लगेगा, थोड़ा नेम वेम आ जाएगा, ऑफिस ऑफिस में प्रमोशन और ये सब हुआ, तो उसे लगेगा कि नहीं ठीक है, वो थोड़ा भक्ति व्यक्ति छोड़ेगा। अगर अभी भी पकड़े हुए है तो अब आता है पॉइंट कि माया भक्ति में भी माया दिखाती है, और कई बार माया में भक्ति दिखाती है। इसलिए कई बार हम लोगों की साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। कई बार हम लोगों को लगता है कि एवरी टाइप ऑफ एसोसिएशन इज एक्चुअली बैड एंड आई विल डू माई स्वाध्याय, मैं बस शास्त्र में रहूं, इधर का एसोसिएशन में इतना नहीं लूंगा। और वो अकेले तो होती नहीं है, चाहे स्वाध्याय भी किसी मेंटर के गाइडेंस के गाइड होना चाहिए, उसके अंडर में आप कर सकते हो। जैसे हम लोग आज भी डिस्कस किए कि वो परंपरा में ही होना चाहिए किसी भी तरह का जो नॉलेज गेन हम भक्ति में भी करते हैं, तो वरना प्राउड भी आ जाता है। अकेले कुछ भी करते हैं तो प्राउड आएगा, और अगर कर पाए तो, अगर नहीं कर पाए तो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो एक तो ये बात है कि माया भक्ति में भी अटैक करती है, इसलिए किसी गाइडेंस या मेंटरशिप में ही रहना चाहिए, और जल्दी पकड़ भी लेना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। उसमें डिले भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज भक्ति इज एट नेसेसिटी, जैसे हम समझे हैं। अब बात आती है कि भाई किस टाइप का एसोसिएशन लें, तो डेफिनेटली सेंटली फॉर पीपल का एसोसिएशन में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसा एक्टिव इंस्ट्रक्शन में हम पढ़े भी हैं। जब रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं उसमें कि जो सेंटली पीपल का एसोसिएशन अगर हम नहीं लेंगे तो फॉल डाउन निश्चित है। अब ये ग्रस्त में जाके फॉल डाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं इसमें। अब जैसे भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो मैरिड थे, भगवान के बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो ब्रह्मचारी थे। तो डिपेंड करता है कि मैरिड लाइफ में भी हम जब एसोसिएशन ले रहे हैं वाइफ का, तो अगर वो डिवोटी हैं तो साथ में कितना एसोसिएशन ले रहे हैं, अगर वो डिवोटी नहीं है तो कितना बिजनेस टू बिजनेस एसोसिएशन ले रहे हैं या उसे एग्जैक्टली बढ़ाने के लिए। मैं ये समझ पाया उन लेक्चर से प्रभु जी कि ये ना किसी मतलब डिवोटी के बहुत स्टैंडर्ड हाई होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिंजेंट होते हैं उन चीजों में। तो मुझे वो कृष्ण प्रभु जी के साथ लगता है कि ही इज ब्लंटली टेलिंग एवरीवन कि ऐसा ऐसा है, एंड दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड। तो वो वाली बात आ जाती है कि आप कितने मतलब स्ट्रिक्टली आई डोंट नो एक्चुअली हाउ टू। सारी चीजें घूम के ना एक पे आ जाएंगी, सारी की सारी चीजें घूम के, आप कितना स्क्रिप्चर कुछ पढ़े, प्रभात बोले हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर भक्तनाथ ठाकुर के जो भजन हैं अपने वैष्णव सॉन्ग्स में, वो सारथी सार है शास्त्रों का, और उस सारथी सार में भी आप पढ़ रहे हैं सब गुरु के बारे में बोल रहे हैं। हमारी भक्ति में जो है ना सब घूम के एक ही पॉइंट आएगा कि आपके पास कोई ऐसा हो जो आपके बाल पकड़े और बोले कि चल भाग यहाँ से, चल इधर ऊपर उठ, क्योंकि हमारे तो ताकत है, एटलीस्ट मेरी तो ताकत है नहीं, स्पिरिचुअली डेड है कम्प्लीटली। ट्रू प्रभु जी, ट्रू। मैं तो अपने बारे में कई बार बोलता भी हूँ कि जैसे मतलब सुअर होता है ना, वो गंदी चीज खा रहा है सड़कों पे, पर कोई अगर उसका कान पकड़े और खींचेगी तो इधर आ, तभी वो कुछ कर पाएगा, वरना उसको तो लगा हुआ है विषय के विषय खाने के चक्कर में ही। करेक्ट ना? तो तो प्रभु सबकी इसलिए कंडीशन है। इसलिए गाइड की ऐसी जरूरत है, मेंटर की ऐसी जरूरत है, और ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है जो ऐसे कान पकड़ेगी, तुम आए क्यों नहीं जी कल क्लास में, हाँ आए क्यों नहीं है, इधर आ तब वो व्यक्ति जाएगा क्लास में, भजन में, इसमें तब उसका कुछ शुरू हो सकता है, वरना तो विषय में ही आ सकता है। मतलब ऐसा है कि उसमें सनत कुमारों की कथा में ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहे हैं और ब्रह्मा जी आंसर नहीं कर पाए। मैं सरप्राइज हो गया जब कथा में पढ़ी कि सनत कुमार आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और उनसे बोले ब्रह्मा जी से कि विषय व्यक्ति में आ सकते हैं या व्यक्ति विषय में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि विषय ही खींच रहा है ऑटोमेटिक, व्यक्ति की अपने कोई कंट्रोल नहीं है। पर कई बार ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति जा रहा है विषय की तरफ, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे में लगे पड़े हैं। तो एक्चुअली कौन किस में लगा पड़ा है, आप ये बताओ हमें, वो ब्रह्मा जी से वो ऐसा है ना कि वो वैसा बताते हैं कि माया को पकड़ने के बाद फिर हम बोलते हैं सबसे कि हमें छुड़ा दो, हमें छुड़ा दो, हमें छुड़ा दो माया से, वो वाली कंडीशन हो जाती है। एक बार हमने गले लगा रखा है माया को, फिर हम सबसे बोलने जा जाके कि हमें छुड़ा दो माया से, हमें छुड़ा दो माया से। दैट हाँ इज द एग्जैक्टली। कंडीशन।
बिल्कुल, तभी भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर वही तो बोल रहे हैं कि एक पॉपकॉर्न लेके गया, एक व्यक्ति ने जो खंबा पकड़ रखा था, मैं उसको बोला कि भाई पॉपकॉर्न ले लो तुम। तो व्यक्ति जिसने खंबा पकड़ रखा है, जब तक वो खंबे को छोड़ेगा नहीं तो पॉपकॉर्न कैसे लेगा? क्योंकि अगर उसने खंबा पकड़े पकड़े पॉपकॉर्न ले भी ली तो खाने के लिए तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ेगा तो पॉपकॉर्न फिर गिर जाएगी। तो पहले उसे छोड़ के डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब उसे पकड़े पकड़े पर डिसाइड करना है कि पकड़े ही रहना है, चिल्लाना है माया छोड़ दूं, या फिर ये उसे लेना है कि नहीं नहीं भाई तुम खंबा छोड़ने को तैयार हो, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। तो अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि पहले तो कोई पॉपकॉर्न देने वाला भी चाहिए। यू नीड अ मेंटर, काउंसलर और स्पिरिचुअल मास्टर, राइट? और फिर दूसरा ये भी चाहिए कि वो आपको इतना इंटेलिजेंस दे सके कि हम खंबा छोड़ने को तैयार हो। अभी तुम खंबा छोड़ने को तैयार नहीं है, खंबा पकड़े पकड़े कह रहे हैं कि नहीं नहीं पॉपकॉर्न तो हमें दिख रही है, बट देखो ना थोड़ा सा मेरे मुंह में डाल दो। वो तो मुंह में डालने को भी तैयार है। सॉरी प्रभु जी, बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने सभी का। आप प्लीज आपको कभी चौकी भी माता इसमें जी कुछ हैं। भी डाउट है ना, तो मैं जी खुद प्रभु। भी हजरत साईं महाराज के लेक्चर सुन सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं आपसे इस पे बात करूंगा, इस पे 2-3 मुझे डाउट और भी थे लेक्चर्स में प्रभु जी के, तो हम बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। Thank you, हरे Mataji. Very amazing discussion. Swati Mataji, you want to add something? नहीं प्रभु जी, और थैंक्स टू ईशु प्रभु, वो इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आंसर Yeah. सुन के भी अच्छा लग रहा था। Thank you. नॉर्मली मतलब डाउट्स ऐसे आते हैं, बट ईशु प्रभु ने पूछे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे कुछ नहीं था ऐसे उदित प्रभु, ऐड करने के लिए मोस्टली हमने कवर कर ही लिया है। और वही था कि मतलब वही रियलाइजेशन है कि भगवान, क्योंकि अपनी मतलब भगवान तो है ना, वो जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, उन्हें तो हमेशा पास्ट प्रेजेंट सब कुछ पता ही है, हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम वो अपनी बॉडी चेंज करते हैं। तो यही था एक रियलाइजेशन। थोड़ा मैंने लेट भी ज्वाइन किया था, तो यही चल रहा था तब कंटेंट ये वाला। और वो इंद्र की स्टोरी जो हमने पहले भी और प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ी है, हॉग बन के आए थे, उसके बाद रेडी नहीं थे यहाँ से जाने के लिए, फंस गए थे वो भी मटेरियली यहाँ पर। उन्होंने भी खंबा पकड़ रखा था हम लोग की वही तरह। हम लोगों की तरफ वही हमारी स्थिति है, तो वैसा ही है। प्लानिंग और प्लानिंग प्लानिंग। प्लानिंग प्लस हमारे साथ भी ऐसे ही है एक्चुअली, कि ये भी मटेरियली भी हमें सब कुछ मिलता रहे, और स्पिरिचुअली भी कोई मतलब ये है कि जब तक कोई धक्का देगा नहीं ना, यहाँ से खींच के हटाएगा नहीं वहां से, तब तक पकड़ के ही खड़े रहेंगे। वाली स्थिति है हमारी भी। कई बार प्रीचर भी तो इजी बोल देते हैं ना, कई बार प्रीचर भी इस्कॉन में, कभी कुछ कुछ प्रीचर वो भी हमारी कंडीशन देखते होंगे वैसे, पर अगर ऐसा कह देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, देखिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। कई बार मुझे लगता है बैलेंस किस बात का, मेटेरियल लाइफ में तो कुछ बैलेंस हो ही नहीं सकता, हम देख ही रहे हैं, अनुभव है हमारा। भाई बैलेंस के लिए दोनों ईंट बराबर होनी चाहिए ना, उसी के ऊपर तो बैलेंस कर पाओगे। एक ईंट तो ऊपर नीचे होती रहती है, वहां पे कैसे खड़े रह पाओगे? भाई मेटेरियल लाइफ में आप क्या बैलेंस करोगे? अरे हमें देख के ही बोलते होंगे कि नहीं, एकदम से बोल देंगे कि नहीं वो वहां कुछ नहीं है, तो डिमोटिवेट हो ये जाएगा बिल्कुल ही, ये। हाँ ये बट बिल्कुल द ही गिर प्रॉब्लम इज जाएगा। कि बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब एक प्रीचर बोल रहा है सामने वाले को, तो वो भी फिर आगे वैसे ही प्रीच कर रहा है। तो प्रिंसिपल मान लिया जाता है फिर इस चीज को। जबकि मैं तो अभी तक नहीं देखा होगा मटेरियल स्पिरिचुअल करके कुछ ऐसे बैलेंस की बात प्रपात की है। एटलीस्ट हम लोग इतनी सारी स्पिरिचुअल स्मॉल बुक्स पढ़ लिए हैं, क्योंकि बैलेंस पॉसिबल ही नहीं। कैसे होगा बैलेंस? ईंट बराबर है ही नहीं, वो एक ईंट तो ऊपर नीचे होती रहती है मटेरियल वर्ल्ड वाली, उसी के ऊपर तो बैलेंस होगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो ठीक है, वो तो आपको इटर्नल हैप्पीनेस देने के लिए तैयार है, बट दोनों बैलेंस नहीं है, तो उसके ऊपर कैसे वो पट्टा रखा जाएगा आपकी लाइफ का? एक ईंट तो मटेरियल वर्ल्ड की वो ऊपर और नीचे होती रहती है। तो बैलेंस मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बैलेंस। सॉरी, यू सेइंग समथिंग? नहीं नहीं, मैं आई एम डन। मेरे को तो टाइम ही नहीं देखा, मैंने अभी ज्वाइन किया एंड में, जब क्लास खत्म होने को हो रही थी मैंने 8:04 पे जय नवीन प्रभु की जय। मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि आपने टाइम बदल गया आज से। चलो अच्छा, पहली क्लास में हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे ऐसा होगा। अच्छा नो प्रॉब्लम। मैं अपना स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे मैंने चेक किया, मैंने मैसेज आ गया प्रभु जी का, देखा और मैंने लॉग इन कर लिया, बट आई डिड नॉट चेक अदर मैसेजेस कि उसमें ऑलरेडी टाइम चेंज कर दिया था। ओके दैट्स फाइन, बट कोई नहीं, मैंने आज का लास्ट डिस्कशन देखा अच्छा था हो गया था, एंड तो टाइम वही हो गया नहीं वाला। वेरी गुड। और
मतलब आपने जो कमेंट किया प्रभु जी बैलेंस के बारे में, तो मेरा भी उसी का मानना है कि बैलेंस जैसा कुछ होता नहीं है. यू कैन नॉट बी इन टू बोट्स, बट एट द सेम टाइम जो पिचिंग वाला मेरा जो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि दवाई वो वैसी दी जाती है जितना सामने वाला ले पाता है. अगर जैसे कोई ब्रह्मचारी का मूड में है, जिसका जैसा मूड है ना, उसी हिसाब से उनके गुरु महाराज उन्हें इंस्ट्रक्शन थोड़ा देते हैं. या जो नए नए स्पेशली नए लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा सा हैवी डोज नहीं देते. उनको ठीक है, मतलब जो है दे जस्ट गिव देयर टाइम. बट अगेन सेम इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी अप्लाई टू द एवरीबॉडी. और वो हमारी गलती हो जाती है कई बार, हम उसको सुन लेते हैं या समझ लेते हैं, वो हम अपना इंटरप्रेट कर लेते हैं. बट एवरीबॉडी, आपके लिए इंस्ट्रक्शन अलग होगा, मेरे लिए इंस्ट्रक्शन अलग होगा, और जो नया बंदा होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन अलग होगा. उस जो प्रीचर का सेम प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड. मैं भी जब नया नया ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया था, तो कई बार मैं इस पे सुनता था कि नहीं नहीं, देखिए मटेरियल स्पिरिचुअल का बैलेंस होना चाहिए. मैं सोचता था अच्छा, मैं कहा प्रभुपाद कहीं ना कहीं तो बताए होंगे शास्त्रों में. फिर एक डिवोटी है जो हमेशा शास्त्रों में रहते हैं, मैं काफी मानता हूँ उनको, उनसे डिस्कस कर रहा था, तो कह रहे थे बैलेंस कैसे करोगे, आप हो ही नहीं पाएगा, आप करके दिखा दो बैलेंस. ना ना ना, बैलेंस तो पाएगा. जो गृहस्थ भी टिके हुए हैं, मतलब अच्छे से, वो एक्चुअली देखेंगे उनके पैर स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से जमे हुए हैं, इसीलिए वो मटेरियल की चीजें भी मैनेज कर पा रहे हैं. बैलेंस नहीं है वो बैलेंस नहीं बोल एक्चुअली सकते. सही बात. बैलेंस बोल ही हाँ. नहीं सकते. वो पूरी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में ही इतने डेडिकेटेड हैं कि वो मटेरियल, एक तो उन्होंने अपनी एंगेजमेंट कम कर ली, फिर जो भी थोड़ी बहुत है, बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली स्ट्रांग, दे आर एबल टू मैनेज. उनका जो मटेरियल है वो केवल एक एक्सटर्नली मटेरियल दिख रहा है. टू बी ऑनेस्ट, दे आर 100% हाँ स्पिरिचुअली. बस, हाँ वो बली महाराज की तरह है, लूट लो पूरा हाँ मटेरियल, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो भगवान के चरणों में पड़े हैं. हाँ. तो मैं पहले एनीवेज, सोचता था कि कोई तो कथा होगी जिसमें भक्तों का बैलेंस के बारे में बात होगी, बट ऐसे कोई कथा भी नहीं. नहीं नहीं प्रभु जी, बैलेंस ये एक बहुत बड़ा मिथ्या है. हो ही नहीं सकता बैलेंस. आप जब तक ये कोशिश करेंगे आप स्पिरिचुअल लाइफ, आप मतलब इन जनरल, हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते. हम सोचें कि हम मटेरियली भी इंजॉय कर लें, और ये एक्चुअली आई थिंक इश्यूज एट दिस पॉइंट, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैला हुआ है. हाँ बहुत ज्यादा फैल रहा है कि हाँ ठीक है, इट्स हाँ ओके एंजॉय, इट्स ओके टू डू दिस थिंग आल्सो. तो वो पता नहीं उसका क्या सॉल्यूशन है, बट दिस इज स्प्रेडिंग अ लॉट, या व्हिच या शुड नॉट हैपन. ट्रू, या शुड नॉट हैपन. या हम लोग तो प्रपात की बुक्स में कहीं नहीं पढ़े अभी तक, इतना टाइम हो गया. जैसे प्रपात बोले, नहीं नहीं प्रपात तो नहीं, ये नहीं है. नहीं, बोलते, लाइफ इज यूजलेस यूजलेस यूजलेस, मेक योर लाइफ परफेक्ट बाय फॉलोइंग कृष्णा. कहीं नहीं बोले कि नो नो, ठीक है बैलेंस अब कर. अभी प्रभु जी शायद मुझे 1% ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इस वजह से इतने कंसेशन दे दिए कि आदमी कम से कम भगवान का नाम ले रहा है कि छोड़ के ना चला जाए. पता नहीं, आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट गुड फॉर आवर ओन सेल्फ ग्रोथ. क्योंकि ये कंसेप्शन हमारी ऐसा हो गया ना कि हाँ इट्स ओके टू वॉच मूवी और सब रिक्रिएशन भी बहुत ज्यादा हम लोगों ने उसको लिवाई कर दिया, वो दे दिया, रूम दे दिया. तो आई पर्सनली फील एज अ स्पिरिचुअल सोसाइटी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और आपका मटेरियल जो भी हमारा है वो केवल एक्सटर्नली होना चाहिए. जो भी आपने बोला ना, कितने सारे गृहस्थ ऐसे हैं जो दे आर एट द लेवल ऑफ ब्रह्मचारीज. आई मीन ब्रह्मचारीज उनकी शेल्टर लेते हैं, ऐसे हैं ब्रह्मचारी, वो ऐसे गृहस्थ हैं वो. एब्सोल्युटली. तो वो दे शुड बी अवर आइडियल, दे शुड कम, उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए. लेकिन somehow things are different, unfortunately. हम एक्चुअली इंस्पायर भी उन्हीं से हो रहे हैं जो मटेरियली एडवांस कर रहे हैं डिवोटीज. वो हाँ हमारा हाँ एक कंडीशन बोलूंगा मैं. जी. और फिर हमें उनका लगता एग्जांपल है कि लेके नहीं सब वो भी उनको, तो डिवोटी है. हाँ सही बोल रहे हो आप. हाँ फिर उनका एग्जांपल लेके सब बोलते हैं अरे देखो वो भी तो, देखो कितना बढ़िया डायरेक्टर है, वो भी तो कर मैनेजर रहा है, है. ऐसा हाँ है. वो भी तो कर रहा है. हाँ हाँ, अरे 16 वाला करो, दैट्स ऑल, एंड देन यू हैव योर मटेरियल बिजनेस ओनली. देखो ना वो भी कर रहे हैं. हाँ फिर exactly. हमें भी लगता है कि नहीं यार, उसको 10-20 साल हो गए हैं खैर भक्ति में, जो कर रहा है ठीक हाँ ही है, चलो हम भी इसी लाइन में चले जाते हैं. राइट. मटेरियलिस्टिक डिवोटी हो जाते हैं फिर हम. वो गलत है एक्चुअली. वो स्पिरिचुअल लाइफ में आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे उससे हम. क्या गलत करेंगे. एनीवेज ठीक है ये, लेकिन Yeah. अच्छा टॉपिक है, इसको डिस्कशन होना चाहिए इस पर. सो गुड, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस. हरे कृष्णा. Thanks to Hikishi to bring this up. ओके. हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. Okay. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. श्रील
की जय। Jai.